Brett Lee contacted me first, and he said, you know, Shane Lee would like to come and meet me. He has got some ideas, and then Brett, I met with him in London, and slowly we got discussing about the cruise, then got to know Josh, Somesh, and Shane. So, you know, we put my team together, and they got discussing, and then there were some interesting thoughts, and then they said, you know, we want to create a special, memorable trip for everyone, where the cricketers will come. They will do a master class, do some chats in the evening with all the tourists, and then they are going to also do a couple of sessions. I mean, I don't know how many guys would want to face Brett Lee, but Brett Lee is apparently ready to bowl in the nets there. That's going to be an experience. Shane Warne is there. He might come and roll his arm over. So it's going to be special. And also then to have Bollywood superstars performing there in the evening and doing a chat show, and comedians, master chefs, DJs, and it's an all-round show altogether. So I feel it's a great opportunity, not just for Indians, because Indians like to travel. They like to spend money where, you know, money is worth spending, and this is definitely worth spending, because, you know, I've never heard of anything, you know, so many different things coming together. Today you guys organized a rally. That's on a day of 26th January, Republic Day. So what's the whole purpose of this rally, and what kind of message are we giving to the youth of nation? We wanted to bring, through the medium of Enfield rally, we wanted to bring maximum amount of bullet riders together, so as to emphasize on the importance of riding discipline in a disciplined manner, and also to promote the awareness about safety. We previously wanted to also call this Real Heroes Ride. However, due to lack of permissions, we could not take it out towards Marine Line side, and hence we had to take it out on the NH8. The primary message again is that we do not want to break any rules. So it starts with us ourselves. So we took out a rally of around 450 bikes, and all riding in a double line formation and in a disciplined way with no casualties, and it's been a successful ride for Royal Enfield. Talking about breaking, you know, when we talk about bullet, we always think about men, but today we can see a lot of girls are also there in this group. So is it like you guys are breaking the norm that no, even the girls can go for the ride, or, you know, it's an equality and all that kind of a thing? Like earlier we had a ride on 15th August which was based on BT Zindabad. So like definitely we promote women riding also, as well as we respect girls. So definitely the message is pretty clear. Like if you have a heart to ride, like let it be, it's no matter of gender or anything, let it be any age. It's just the thumb what gets you there. You were part of this group and you were part of this rally. How was your experience? Yeah, it was a good experience, and all people are very good. They respect girls also. So thank you, RID. How was your experience riding with the bullet? It's a great experience. Today's formation coordination was awesome. So I mean, I'm proud of RID family. Guys, any message? और 2002 को
हम लोग गवर्नमेंट सरकार के पास गए, सरकार ने अपने हम लोगों को संगठित होने के लिए कहा। संगठित होने के बावजूद हम लोग ने जनरल बॉडी लेने के बावजूद हर एक झोपड़ी धारक का सम्मति पत्र ले लिया। उसके बाद में हम लोग SRA में दाखिल किया, BMC में दाखिल किया। BMC ने उसका परिशिष्ट 2 बनाने का 2003 में फरवरी 2003 में परिशिष्ट 2 बनाया। उसके अंदर 1867 लोग थे, उसका 70% के ऊपर थे। उसके बाद 2002 को वो लोग ने अनेक्षर बनाने के बावजूद 21 अप्रैल 2003 को BMC ने LOI, मुंबई महानगर पालिका ने LOI दिया। LOI देने के बाद SRA ने LOI दिया। उसके बाद में अपना काम चालू हो गया। 2005 को वो लोग ने टोटल 550 लोगों को वहाँ से उनका झोपड़ा तोड़ के 550 लोगों का झोपड़ा तोड़ के वो लोगों को खाली करके कई लोगों को भाड़े से सब लोगों को भाड़ा देके बाहर भेज दिया। वो भाड़ा देने के बावजूद उसने 4 बिल्डिंग खड़ी की। 4 बिल्डिंग में 210 जन को दोबारा वापस लाया। 2006-07 में सब लोगों को 210 लोगों को अंदर लाया। आज 316 लोग फुटपाथ पे जिनको भाड़ा नहीं मिल रहा है, भाड़े किसे ले तरस रहे। बिल्डर ने दूसरा एक उसने सहयोगी बिल्डर लिया, क्यों तो उसके पास से अपने लोगों का काम पूरा नहीं हो रहा था करके उन्होंने अपने बोला सहयोगी बिल्डर चाहिए, तो सोसाइटी ने उसको अनुमति दी। सहयोगी बिल्डर लाने के बाद उसने 108 करोड़ रुपया उसके पास से लिया। वो अपना दूसरा प्रोजेक्ट में खर्चा करके सहयोगी बिल्डर को साथ में लाया। सहयोगी बिल्डर को 4 लाख से ले पैसा उसने दिया। वो 4 लाख से ले पैसा, वो भी किसी को पूछा नहीं, SRA का परमिशन नहीं। बिल्डर लाने के लिए भी SRA का उसने परमिशन नहीं लिया। इतना तक कि SRA को वो लोग ने मालूमात भी नहीं करके दिया। ये होने के बावजूद जो नया बिल्डर ऑर्बिट कारपोरेशन करके आया, उसका सहयोग बिल्डर, उसने 200 करोड़ रुपया LIC से हमारा ही प्रोजेक्ट के ऊपर कर्जा लेके वो भी भाग गया। उसके बाद में हम लोग 2009 में SRA के पास जाके 13(2) के अंतर्गत दावा दाखिल किया। वो दावा दाखिल करने के बाद उसका जजमेंट 29/6/2015 को आया। उसके अंदर बिल्डर को निकाला दिया गया, मगर अभी तक हम लोग को सरकार दूसरा बिल्डर भी दे नहीं रही है। वो बोलते हैं 70% होना चाहिए। मेरा हिसाब से अभी हम लोग संगठित है। सोसाइटी का जरिए से देखेगा तो मेजोरिटी के ऊपर जब जाता है ना, तो उन लोगों को बिल्डर देना चाहिए, मगर आज तक उसमें बिल्डर दिया ना। हम लोग को तो 67% वोटिंग होने के बावजूद भी सरकार बिल्डर दे नहीं रही। सरकार का उसके अंदर क्या हित है वो मालूम नहीं है। मगर हम लोग फुटपाथ पे आज किसी को सही ढंग से भाड़ा नहीं मिल रहा है, जिसको लाया वो देता है तो उसको परमिशन नहीं मिल रही। हम लोग सरकार के पास 100 बार जा चुके, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी दूसरी बात बची इधर तो या BMC ने उसके पर ध्यान देना। ये तो पूरी जमीन है, ये BMC की है। उसके अंदर BMC का जमीन एक एडवांस बिल्डर पार्टी थी, उसके पास जा रहे थे, वो भी सोसाइटी ने लड़के जीत के दिया। उतना देने के बाद भी मुंबई महानगर पालिका उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। बची बात दूसरी कि वो होने के बावजूद 2002 साल के बाद SRA योजना आने के बाद BMC ने के पास पूछा तो वो बोलता है जो लोग 316 लोग आज फुटपाथ पे, उनके लिए हम लोग बोला बहुत नया स्कीम चालू होगा, तब तक हम लोग का हमारा जो टूटेला मकान बनाने के लिए दोबारा दो। BMC बोलते हैं हमारे पास अधिकार नहीं है। और जो गैर कानूनी आज 3-3, 4-4 माला बढ़ रहे हैं, उसके लिए BMC वाले लोगों के पास तकरार देगा तो BMC वाला आता है, 2-4 ईंट निकालता है, उनका लोग पैसा लेके चले जाते, पुलिस वाले आते, वो रोड मार्शल आके देख के चले जाते, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। कल हम लोग ने पुलिस स्टेशन पे हम लोग मोर्चा लेके गए, सीनियर बोलता है हमारा ड्यूटी ही नहीं है उधर आने का, हम लोग नहीं रोक सकते। अभी तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? सीनियर जब भी बोलता है हमारा अक्का टीम को, हम लोग 100 लोग थे, उन लोग को बोलता है कि हमारा काम ही नहीं है, तो किसके पास रहेंगे? अभी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। या तो लड़ने के लिए अभी रोड पे आके लड़ना पड़ेगा, सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो हम रोड पे आके लड़ेंगे, ताकि हम लोग ऐसा तो हमारा घर जा चुका है, ऐसा तो फुटपाथ है, दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। एक ही रास्ता है कि अब रोड पे आके लड़ने का या आत्मदान करने का, सामुदायिक आत्मदान करने का, उसके सिवाय चारा कोई बचा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने अभी नया प्लान लाया है कि माडा और सरकार मिलकर प्राइवेट बिल्डर लाएंगे और माडा के साथ वो प्रोजेक्ट करेंगे, जो सारे प्रोजेक्ट रुके हैं। क्या इस संबंध में आपकी माडा के गृह मंत्री रविंद्र वायकर जी से कुछ बातचीत हुई है क्या?
नहीं, उनके साथ बात नहीं होगी, हम लोग का सीओ के साथ बात होगी। अभी हम लोग ना सरकार नया कुछ योजना जाहिर करते, हम लोग को कहाँ बैठाते उसका भी पता नहीं। हम लोग बार बार उनके पास जा चुके, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एनेक्सर 2 के बारे में कुछ हम लोग बात। हाँ, 2011 में बीएमसी ये अपने इधर एक एक्स काउंसिलर है नहीं, पुराना नगर सेवक है, उसका परिवार से कोई ने तकरार करने के बावजूद वो परिशिष्ट 2 बीएमसी ने दोबारा चेक करने के बाद उसको रुका दिया, फिर से दोबारा चेक करने के लिए। मग आम्ही कोणाकडे जायचं? एसआरकडे जाऊन एसआरडी पत्रव्यवहार करेपर्यंत बांधकाम रेडी झालेले असतात। त्यासाठी आम्ही बीएमसीकडे केलेलं आहे। त्यासाठी उद्या आमचा सोमवार किंवा मंगळवार आमचा मोर्चा सुद्धा असेल, कारण आतापर्यंत अनधिकृत बांधकामामुळे हे प्रोजेक्ट हा रखडतो। कारणच ते आहे की या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामं होत आहेत आणि म्हणून कोण फॉर्म भरत नाही, त्याच्यामुळे कन्सेंट मिळत आहे, त्याच्यामुळे पुढे 66% आम्ही आलो। माझ्या मते मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी 66% जे होतं म्हणजे मेजॉरिटीमध्ये जी लोक आहेत त्यांना तो बिल्डर निवडायला द्यायला पाहिजे होता, पण एसआरआयने पण अजूनपर्यंत आम्हाला काही सुद्धा कळवलेलं नाहीये की का बाबा कशाबद्दल ते का कळवलं गेलं नाही। जर 70% म्हटलं तर त्याच्यानंतर मध्यंतरी आलं होतं की 70% एवढं काही नाही, 50%वर काहीतरी मध्यंतरी पेपरला तुमचं झालं होतं की 50% होईल, पण त्याच्यातून त्यांनी एसआरआयने सीओने आम्हाला तसं गाईडलाईन्स द्यायला पाहिजे होते की बाबा तुम्ही 66% यांच्याकडे मेजॉरिटी आहे, तर यांनी आज गेली 12 वर्ष लोक बाहेर आहेत। 2002 ते आज 2016 उजळले। फेब्रुवारी 2002ला त्यांना हे केलं, त्याच्यानंतर आज या ठिकाणी 14-15 वर्ष झाली, आज लोक बाहेर आहेत। ट्रान्झिट स्कॅम आम्हाला ट्रान्झिट स्कॅममध्ये पण लिकेजिंग चालू, सगळ्या गोष्टी चालू आहेत। लोक हानमार झाली, काहीतरी जीवित धोका झाला, तर जबाबदारी फक्त डायरेक्टली कमिटीवर येणार आहे। ती कमिटीने काही लक्ष दिलं नाही, पण आम्ही आज जो काय करस्पॉन्डंट केलेलं आहे, जी कागदपत्र दिलेली आहे सगळ्या ठिकाणी, त्यांच्यावर काही कोणाचा विचार नाही। त्याच्यावर सरकारचं लक्ष नाहीये, एसआरआयचं लक्ष नाहीये, इव्हन बीएमसीचं लक्ष नाहीये, इव्हन पॉलिटिशियनचं नाही। आज तुमच्याकडे काय प्रकरण आहे का? आमच्याकडे जीआर आहे ना 14 फूटचा। 14 मागणी कोणासाठी, कोणच्याकडे मागणी कोणाकडे आहे? कुठची की तुमचा प्रॉब्लेम आहे, कोणच्याकडे तुम्ही हे बोलवलं आहे, तुमचं जमा झालेला है, ये मांगनी काय तुम्हें करना है, क्या किससे बात करना, क्या बीएमसी के बीएमसी को जीआर वहां से जो मंत्रालय ने दिया है कि वो 14 फुट के ऊपर तुम लोग कोई बांधकाम नहीं कर सकते, तो बांधला जाऊ नये असं त्यांचा जीआर आहे। तो जीआर किती तारखेचा आहे? तो जीआर आहे, त्या जीआरच्या हिशोबाने बांधकाम झालं नाही पाहिजे। मग बीएमसी गव्हर्नमेंटचा जीआर असताना मग बीएमसी का लक्ष देत नाही, का 2-3 माळे चढले जातात परमिशन नसताना? तुमच्याकडे काय परमिशन आहे का? की परमिशन आहे माझं हे 4 माळे बांधायला, मला 3 माळे बांधायला परमिशन बीएमसीने दिले, मग बीएमसीने परमिशन दिलेलं नसतं, मग बीएमसी का ती डेमोलिश करत नाही? आणि आमच्या तक्रारी आम्ही नावं दिलेली आहेत, आमच्या सगळ्यांनी असेच विभागामध्ये व्हिडिओ झालेले आहेत, त्यांनी स्वतः हे फिरून विभागात बघितलेलं आहे, स्वतः बीएमसी त्यांचे संबंधित अधिकारी या लोकांनी बघितलेलं आहे, तरी पण यावर डिमोलिश होत नाही। आणि जोपर्यंत डिमोलिश होत नाही तोपर्यंत हा पुढे प्रोजेक्ट चालणारच नाही, त्याला गती मिळणार नाही। त्यासाठी बीएमसीने, एसआरएने आणि पोलीस स्टेशनने आम्हाला कमिटीला सहकार्य करावं याच्या पुढे, नाहीतर हे झाल्यास आम्ही त्याच्यावर काहीतरी आंदोलन छेडू। उद्या बीएमसीकडे पण आंदोलन छेडू आणि उद्या पोलीस स्टेशनला पण सांगू, कारण ज्या ठिकाणी आम्ही तक्रारी करून सुद्धा काही होत नाहीयेत। दुसरी गोष्ट, आम्ही आता सर त्याच्यावर 3 माळे आता कोर्टात केस आहे, करसन पटेल म्हणून 3 माळे ज्या ठिकाणी ते बांधलेले गेले आहेत त्याच्यावर कोर्टामध्ये केस आहे। ओक साहेबांनी पण त्याच्यावर डिमोलिशची ऑर्डर दिलेली आहे, जस्टिस ओक त्यांनी ऑर्डर दिलेली आहे डिमोलिश, तरी पण त्या गोष्टीवर काय होत नाही, इकडून तिकडून स्टे आणणं, तिकडून ते आणणं असं करून ठेवलेलं आहे। त्यामुळे हा एसआरए प्रोजेक्ट आम्हाला राबवायचा असेल तर बीएमसीने याच्यामध्ये पहिलं प्रथम सगळ्यात लक्ष देऊन या ठिकाणी अनेक्षर बनवावं, पोलीस स्टेशनने या ठिकाणी जे अनधिकृत बांधकाम होतं त्याच्यावर कारवाई करावी, त्यांना जमत असेल तर त्यांनी तसं लिहून द्यावे की आमच्याकडे हे होणार नाही म्हणून, मग पुढे आम्ही कोर्टात जाऊन काय करायचं ते करू। काम होत नाही इथे आणि इथले असे लोक येतात स्थानिक नगर म्हणजे हे माजी नगरसेवक वगैरे मोहन लोकेगावकर हा कुठल्याही परिस्थितीत इथे कुठलाही काम करायला देत नाही, आणि जर काय काम करायचं असेल तर तो गुंडगिरी करतो, काही नाही काय ते वाईट बरे धंदे करतो, म्हणजे कुठेच काय आम्हाला आधार देत नाही, ना बिल्डर आणायला देत, ना बिल्डर आणला तर काय त्याला काम करायला देत। प्रत्येक वेळेला तो आपापल्या तऱ्हेने नको ते आमच्यावर जे एनसीआर टाकतो, नको ते कंप्लेंट करतो आणि आम्हाला हे काम करायला पुढे जायला देत नाही। आज आम्ही किती वर्ष आमच्या मुलाबाळांना घेऊन आम्ही रस्त्यावर राहायचं, आज आमची मुलं लग्नाला झाली आहेत पण आम्ही त्यांचं लग्न करू शकत नाही, का तर आमचं घर नाहीये, कारण घर नसल्यामुळे आमच्या मुलांचं आम्ही लग्न करून कोणत्या दारात जाऊ शकत नाही।
आज 10 वर्ष झाले आम्हाला भाडं मिळताना मुश्किल होतो. कोणाकडे जायचं आम्ही भाड्याला? ना बिल्डर कुठे येत, ना सोसायटीकडे आम्ही मागू शकत. करणार का आम्ही? आम्हाला पर्याय नाही कुठला. आज जर घर नसेल तर या मुंबईमध्ये आज माणसाचं जीवन जगणं मुश्किल झालेलं आहे. आज 10 वर्ष बाहेर म्हणजे काय सामान्य काम नाही. आज आमचं भलं कसं बी आमचं घर पण आमच्या डोक्यावर छप्पर होतं, पण आज तेही देऊन आम्ही फसवलेलो आहे. आणि ह्या SRA मध्ये कुठल्याही गोष्टी आज 10-12 म्हणजे जास्तच वर्ष झालेच ना, 10-12 वर्षाच्या वरच, पण SRA प्रोजेक्ट काय पूर्ण व्हायला कोणी आम्हाला मदत करत नाही. ना BMC करत, नाही पोलीस स्टेशन करत, नाही कुठल्या पक्षाचे कोणी निवडून आले तरी आम्हाला याच्यामध्ये कोण मदत करत नाही. हे राजकारणी लोक येतात, आपली कामं करतात आणि बाहेर होतात. आम्हाला कोण सपोर्ट करत नाही. मग आम्ही जायचं कोणाकडे? आता माझी नगरसेवक हा मोवेल लखेगावकर 5 वर्ष इथे नगरसेवक होऊन गेला. 5 वर्षामध्ये त्यांनी इथे इतकी अशी अनधिकृत बांधकाम चालू केला की या म्हणजे झोपडपट्टीमध्ये आमच्या 3-3, 4-4 माळ्याचे गारमेंट करून गारमेंटच्या लोकांना काय होतं 10,000 रुपये पर्यंत भाडं मिळतंय. ते लोक देतात भाड्याला रूम, त्यांना 10-20 हजार रुपये भाडं मिळालं की त्यांची घरदारं चालतात आहेत. तर त्या लोकांना काही फरक पडत नाही, कारण ती स्वतःच्या घरामध्ये आहेत. आणि हे एवढे माळे बांधायचा परमिशन BMC देते कशी? जर SRA इथे लागू झालेला असताना हे चुकीचं झालंय ना, की तुम्ही कसं कोणत्या पद्धतीत त्यांना तुम्ही परमिशन देताय? BMC काय करू शकत नाही, पोलीस स्टेशन काय करू शकत. मग आम्ही कुठे जायचं? आता आमच्याकडे 2 पर्याय आहेत. एक तर आम्हाला घर नाही मिळाला तर आम्ही सरळ पोलीस स्टेशन असू दे का BMC असू दे, आम्ही आमच्या अंगावर रॉकेल ओतून आग लावून घेणार. हा आमचा पर्याय शेवटचा आहे. कारण बोरली स्टेशन पे जो ये नया प्लेटफॉर्म बना है उस पे ना बहुत अच्छे तरह से पोस्टर मेकिंग हो गया. मतलब ये जो वॉल पेंटिंग किया है
यहाँ पे एक क्वीन दिख रही है, फिर वहाँ पे एक सोशल मैसेज किया है। ये सब मतलब इंटरेस्टिंग है। ये इसके पहले कौन से ही स्टेशन पे मैंने ये सब देखा नहीं है कि मतलब अभी तक मतलब यहाँ पर थूको मत, यहाँ पर गंदगी मत फैलाओ, ऐसे मैसेज मैंने अभी तक देखे हैं। लेकिन जहाँ पे पोस्टर मेकिंग की बात आती है, मतलब वॉल पेंटिंग आती है, वहाँ पे बोरोली में पहली बार एक्सपेरिमेंट हो गया। जैसे कि अभी ये ड्राइंग देखने के बाद आपको यहाँ पे थूको मत, ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई ये ड्राइंग देखेगा तो यहाँ पे इसकी थूकने की हिम्मत होएगी नहीं। जो वॉल पेंटिंग अभी भी देखी है, मतलब जे स्टूडेंट्स या फिर मैं अभी एमडी कॉलेज से रिलेटेड रखता हूँ, मतलब मैं एमडी कॉलेज में पढ़ता हूँ अभी, वहाँ पे मैं फाइन आर्ट्स पे ध्यान देता हूँ, आर्टिस्ट हूँ, ड्रामा या इस पे सब में रिलेटेड करता हूँ। यहाँ पे देखो ना, जैसे कि अभी ये जो वेल दिखाई है, ड्राइंग दिखाई है, यहाँ पे जो पीछे पोस्टर मेकिंग किया है, जो ड्राइंग किया है, वो सब देखने के बाद यहाँ पे किसकी हिम्मत ही नहीं होगी। और अवेयरनेस जो जी की बात की है आपने, यहाँ पे मुझे तो लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है अभी तक बोरोली तक, मेरे को लगता है ये जो बोरोली में अभी तक हुआ है एक्सपेरिमेंट, मैं अंधेरी घुमा हूँ, बैंड्रा घुमा हूँ, मुझे अभी तक ये तो दिखा नहीं है जो बोरोली में हुआ है अभी तक। मेरे को लगता है ये जन जागृति के लिए बहुत ही अच्छा है, जन जागृति के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है अभी तक। इसके लिए मैं दहीसर में रहता हूँ, लेकिन मेरे को ये बहुत पसंद आया है अभी तक के लिए। हमारा एनजीओ में बहुत सारे बच्चे हमारे साथ युवाओं जुड़े हुए, तो युवाओं ने एक संदेश दिया कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो ने स्वच्छ भारत अभियान का जो मुहिम चलाया था, तो उन्होंने बताया कि हम स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ इसे ब्यूटिफिकेशन क्यों ना करें, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन करने से एक चीज़ अच्छी होती है कि ब्यूटिफिकेशन से जनरली वो चीज़ हमें बिगाड़ने से हम हिचकिचाते हैं। और आज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसी देखने मिली है कि पहले बोरीवली स्टेशन पे काफ़ी सारा कचरा या कुछ पड़ा रहता था, लेकिन आज एक दूसरे को सब लोग रोकने लगे हैं कि बोले इतना ब्यूटीफुल बनाया है तो हमें ये बिगाड़ना नहीं है, ये हमारा है। और एक कहावत बोली है ना कि जो हमें बदलाव देखना है वो बदलाव हमें अपने आप से शुरू करना है। तो इसके लिए हम ये इंस्पायर हुए और ये ब्यूटिफिकेशन का किए, और ब्यूटिफिकेशन में हमें काफ़ी यहाँ पे 500 से ज़्यादा वॉलंटियरों ने सपोर्ट किया। और ये हमारा ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट 16 तारीख से शुरू हुआ था और ये अभी फाइनलाइजेशन पे है, और खार स्टेशन भी हम फाइनल कर रहे हैं और कम्प्लीटली कल सब कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और ये ब्यूटिफिकेशन का इस तरीके से हमारा विचार शुरू हुआ और अभी यहाँ तक हम पहुँचे हुए। करीब ये बोरीवली और खार दोनों मिला के करीब 12 लाख का करीब हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा। अभी ये बोरीवली करने के बाद हमें मस्जिद बंदर, मलाड, कांदीवली और बहुत सारी जगह से घाटकोपर, थाने, डोंबिवली, बहुत सारी जगह से हमें इनवाइट आया हुआ है और उन्होंने हमारे साथ जुड़ के करने के लिए ग्रांट रोड, चन्नी रोड, यानी बहुत सारे स्टेशन अभी ऐसा दिख रहा है कि अगले 1 साल के अंदर मुंबई के कोई भी स्टेशन ब्यूटिफिकेशन के बिना नहीं रहेंगे, वो दिख रहा है हमें। आरटी आया हुआ है और उन्होंने हमारे साथ जुड़ के करने के लिए ग्रांट रोड, चन्नी रोड, यानी बहुत सारे स्टेशन अभी ऐसा दिख रहा है कि अगले 1 साल के अंदर मुंबई के कोई भी स्टेशन ब्यूटिफिकेशन के बिना नहीं रहेंगे, वो दिख रहा है हमें आज। ਤਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਤਮਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ, ਔਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ तमाम ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, वामपंथी दलों के कई समर्थक और साथी साडे नाल सन, और स्वाभिमान पार्टी ने हाल विच अपना समर्थन दिता
अनेक जथेबंदियां ये जो असी इकट्ठा कर चुके हैं, ये असी 2017 की सियासत तक खेडनी, वो जड़ा जंग है वह ऐलान तक कर चुके हैं। साडा इत्थे आके आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैं खड़ा होया, पर यह साबित करता है कि असी किन्ने रेलेवेंट हाँ ते असी किस किस्म का पोलिटिकल डिस्कोर्स पंजाब में चाहुंदे हैं। तो ये तो बिगुल तो बच चुका है जी 2017 का, तो जंग ये तो हुण पेचा कहंदे पै गया। हुण तां रद्द करन दी भी भाई बलदीप सोंधे दा कोई किसी दी हैसियत नहीं, क्योंकि वो कागज़ बड़े बातरतीब हुंदे ने, और जे बातरतीब ना हुंदे ते असी पेश ही क्यों करदे। जे बातरतीब ना हुंदे ते वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट ही कागज़ ही एक्सेप्ट क्यों हुंदे। और वो बाकी रही अफसरां दी चलो इंटरप्रिटेशन का तो ना हुंदा, ये सारिआं नूं पता है कि किहड़े दल हनगे। अकाली दल आपां नूं पता है कि वो नहीं चाहुंदा कि भाई बलदीप सिंह इलैक्शन चोण लड़े, कि रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा जिहड़े कि अकाली दल की जिहड़ी परिवारवाद की जिहड़ी नीति है उस दे तहत उन्हां दा नॉमिनेशन भरिया गया, ते उन्हां नूं वो जिताउणा भी चाहुंदे ने वगैरह वगैरह। जे बातरतीब ना होंदे असीं पेश भी ना करते। पंजाब च जिहड़े नहीं चाहुंदे कि मेरा जिहड़ा सियासत विच दखल ना होवे। अकाली दल दे कई लोग ने जिहड़े साडी मौजूदगी तो डरदे ने, भै खाउंदे ने। उस तरह आम आदमी पार्टी विच कई नेतागण हैगे ने जिन्हां नूं जदों मैं पार्टी विच एक्टिव सां उदों दा उन्हां नूं भै भी सी। सो कई जने दुआ तो करते हैं, रोज अरदास करते हैं कि भाई बलदीप सिंह नूं कोई ना कोई विघन पैंदे रहन वगैरह वगैरह। पर उस तरह नाल जिहड़ा मेरा पिछला 30 सालां दा काम है उहदे तहत भावें वो कांग्रेस है, भावें अकाली दल है, भावें आम आदमी पार्टी है या होर सियासी दल ने, भावें बसपा है, बीजेपी है, उहदे विच अनेक विद्वान चिंतक जिहड़े हैगे ने उन्होंने प्यार भी किया, इज्जत भी की है। सो मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन मैं शुकराना भी करदा सारी सपोर्ट का जिहड़ी मैनू सदा मिलती रही है। सो ये कल्ले एक बड़े अफसोस की गल है जिवें होया ये एजेंडा पोलिटिकल वेंडेटा भी है और पर्सनल वेंडेटा भी लगता है, क्योंकि जिहड़ी नॉमिनेशन जिहड़ी फाइल की गई है वो जो कागज़ दिते ने उहदे विच मैं जदों उन्होंने पहला टिप्पणी की कि तुसी वोटर कार्ड अपना नहीं जिक्र किया, पर यह गल्लां मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे डिटेल्स जावांगा। पर जो कागज़ असी दिते सी, अज जिहड़ा मेरा जवाब सीगा मोटा मोटा मैं सारे डिटेल्स जावांगा, पर जो कागज़ असी दिते सी, अज जिहड़ा मेरा जवाब सीगा मोटा मोटा वो जिहड़ा जवाब हैगा ओनू गौर नहीं किया गया, उसनू बाकायदगी च पढ़िया नहीं गया, ते जो संजीदगी चाहिदी सी उसनू पढ़ के जिस बाहोशी नाल फैसला लेना बनता सी वो शरेआम सारिਆਂ सामने सी कि नहीं होया, जिस करके मैं उन्हां दे नाल रोस भी कीता ते उन्हां नूं अलामा भी दिता उत्थे ही जिहड़े अफसर सीगे। कैंप हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर पर पहली बार किया। वैसा हम लोग, हमारा जो ग्रुप है सोशल एंड वेलफेयर फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं के बैनर पर हम लोग लेते रहते हैं, लेकिन इस संस्था जो है मरकजी गौसिया कमेटी, इसके बैनर पर पहली बार लिए। कितने पेशेंट्स लोग आए? मैं समझता हूँ कि 1000 से ऊपर पेशेंट्स यहाँ से फायदा उठाकर गए। और इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के कैंप हर जगह जगह पर, और हमारी कमेटी ने ये आज के रिस्पांस को देखते हुए ये डिसाइड किया है कि तकरीबन हर महीने में एक मेडिकल कैंप, और वो भी खास तौर से स्लम एरियाज में, ताकि वहाँ के गरीब लोगों को अच्छे से उनका चेकअप हो जाए, उनको फ्री में दवाइयाँ मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को इसका फ़ायदा पहुँचे। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया था यहाँ पे पेशेंट के लिए, और यहाँ पे लता मंगेशकर हॉस्पिटल की तरफ से जो आए थे पेशेंट उनके लिए दवाइयाँ और खून की जांच की पूरी मुफ्त में सुविधा दी गई थी। और आगे चल के अगर उनको कुछ तकलीफ होती है तो अगर वो अस्पताल में आते हैं तो उसमें भी जो मैक्सिमम कंसेशन हो सकता है अस्पताल की तरफ से वो हम करके देने वाले हैं। इस कैंप को ले आगे और कैसे करना चाहिए, क्या तरतीब देना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस फॉलोअप रखना चाहिए। यहाँ पे जो लोग आए थे ये इसी एरिया के थे,
तो ये कमेटी के द्वारा उन लोगों से कांटेक्ट करके कि उनको कितना फ़ायदा हुआ, आगे उनको कुछ तकलीफ है क्या, ऐसा कुछ है तो हमें कांटेक्ट करके हम जो भी सहायता या मदद हो सकती है वो कर देंगे। कॉलेज में खड़े थे हम लोग, किसी ने बात करते हुए, तो एक लड़का कुछ तो ही बोल के गया उसको, तो उस पर जैसे ने बाद में हुई तो उस पर झगड़ा हुआ। फिर वो पेपर देने गया, तो पेपर देने के बाद आया वो, तो उसने लड़के बुला के लाया। 6-7 लड़के लोग थे, तो कनान के थे, 6-7 लड़के लोग थे, तो उन लोग ने मारे। उन लोग फाइटर था उनके पास और वो चाकू था। मेरे को यहाँ पे मारे, यहाँ पे पेट पे। 17 लोग थे, किसी ने आपकी मदद किया? हाँ, एक था मेरा दोस्त। मैं 2 लोग था, मैं 2, मेरा भाई 3 और एक लड़का वो आकाश नाम का, वो 4। आज सुबह पोरवाल कॉलेज के अंदर ये जो मयत हुआ है दानिश शेख, ये एक लड़की के साथ बात कर रहा था। तो उस टाइम जो आरोपी है अमन यादव, वो कनान से रहने वाला है, वो आया और उसको कुछ तो भी बोला कि क्यों लड़की से बात करते हैं, ऐसा कुछ तो भी बोला होगा। तो उसमें वो दोनों में सुबह झगड़ा हुआ था। ये दानिश का जो छोटा भाई है राजीव, वो भी वहाँ था। हाँ, तो वो रजीक और दानिश दोनों ने मिलके ये अमन को मारपीट किया। सुबह बोले तो 11-11:15 की वो बात है। बाद में वो लड़का जो है वो अमन, वो उसकी टेस्ट थी 12वीं की, तो वो अंदर चला गया टेस्ट देने के लिए। पर उन्होंने बाद में फ़ोन पे बुला लिया होगा कुछ लोगों को, और बाद में 3-4 लोग आए। दोपहर 1 बजे के करीब ये जब बाहर था राजीव, तो गेट के बाहर तो वहाँ उसको मारपीट करने लगे। तो वो उसका जो भाई है दानिश, वो वहाँ चला गया छोड़ने के लिए या मदद करने के लिए। तो उसमें वो जो लोग मार रहे थे अमन और उसके दोस्त, उसमें से किसी ने तो एक जना ने चाकू मार दिया, छाती पे चाकू मार दिया, तो वो गिर पड़ा। बाद में उसका जो दोस्त है आकाश श्यामलाल राउत बोल के, वो उसको उसमें चला गया छोड़ने के लिए, तो उसको भी वार किया चाकू से, वो भी जख्मी हो गया। और ये जो राजिक है उसको भी फाइटर से सिर पे मारा पीछे की साइड से, तो वो भी जख्मी है। इसमें 2 जख्मी है और एक की डेथ हो गई। आरोपी अमन को अटक किया है हमने और बाकी लोगों की तलाश चालू है, वो भी जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ये आकाश और उसके साथ 4 बोले तो 5 हो सकते हैं। है उनकी शान में हम लोग ये जुलूस निकालते हैं, और ये जुलूस तो यानी कि क़यामत तक निकलते रहेगा, क्योंकि ये सुन्नी हनफी मसलक जो है ये इनको गौसे पाक को फॉलो करता है। हम लोग जो है बाबा ताजुद्दीन, गौस पाक, यानी कि सारे बुजुर्गाने दिन सूफ़ी संत को हम लोग सूफ़ी संत को फॉलो करते हैं, और इस कारण हम लोग ये निकालते हैं, हर इसका निकलता है। देखिए, पहली बात तो मुसलमान जो होता है वो टेररिस्ट नहीं होता है, और जो टेररिस्ट है वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान सुन्नी सहीउल अक़ीदा वो है जो अल्लाह उसके रसूल का फरमान माने और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चले, जो गौस अब्दाल को माने, जो हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नसीहत की है, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नसीहत की है, उसको जो माने वो टेररिस्ट कभी नहीं हो सकता। और जो टेररिस्ट हो सकता है वो ना गौस को मानने वाला हो सकता है, और ना ही ख्वाजा को मानने वाला हो सकता है, और ना ही वो मुसलमान हो सकता है।
आज जो मुसलमानों के ऊपर में अत्याचार जो हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर में तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तरह तरह के इल्जामात हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान आतंकवादी है। मेरा कहना सारी दुनिया के मुसलमानों से, सारी दुनिया के लोगों से ये है कि आज तक के मुसलमान के अंदर आप कोई भी टेररिस्ट को देख लीजिए कि जो भी टेररिस्ट है वो ना गौस को मानने वाला है, गौसे पाक को मानने वाला है, और ना ही ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाला है, और ना ही वो कभी गौसे पाक की जुल्म में शिरकत करने वाला है, और ना ही वो सुन्नी है और ना ही वो मुसलमान है। जो भी मुसलमान है वो सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक आला हज़रत को मानने वाला है, और वो ना कभी टेररिस्ट हो सकता है, ना उसकी नस्ल कभी टेररिस्ट हो सकती है। हमारा यही कहना है कि मुसलमानों को तंग करने वालों बाज आ जाइए, वरना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सारी दुनिया के अंदर गौसे पाक के मानने वाले एकजुट होकर के ना मुसलमानों को ना किसी को देखा जाएगा, और हम ना मुसलमानों को अत्याचार होने वाला वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अभी पूरे देश में एक हलचल मची हुई है। जो हमारा भाई था, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था, रोहित, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक पीजी का स्टूडेंट था, उसने सुसाइड किया। उसके विरोध में, वो हमारा भाई था, विद्यार्थी था, उसने जो सुसाइड किया उसको न्याय देने के लिए हम लोग आज रास्ते पे आए हैं और ये नारे निदर्शन और ये आंदोलन कर रहे हैं। आगे आप अन्याय के लिए लेकर क्या बोलना चाहोगे? अगर इसी तरह की ये मनुवादी सरकार, ये मनुवादी ताकतें और भारतीय जनता पार्टी और उनका एनडीए सरकार हम दलितों के ऊपर, हम दलितों के महिलाओं के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, उनके शिक्षा, उसके एजुकेशन के विरोध में अगर इनका एजेंडा होगा तो निश्चित हम बड़े तादाद में रास्ते पे उतर के आंदोलन करेंगे। हमारा एक बच्चा रोहित है। बाबा साहब के संविधान के अनुसार सभी को शिक्षा मिली है, सभी को सम्मान मिला है, लेकिन अगर ये सरकार अगर हमें शिक्षा नहीं दे रही है, एजुकेशन नहीं दे रहा, हमारे स्टूडेंट और विद्यार्थियों के ऊपर, समाज के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार करेंगे तो हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। आज तो ये तो क्या है, ये टेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अगर आप एक्शन करोगे तो हम वो कौम है, बाबा साहब के बच्चे, आप एक्शन करोगे हम रिएक्शन देंगे। अभी ध्यान में रखिएगा।